Hello guys, my name is Dheeraj Kumar Gupta and today we discuss in this lecture that is terrestrial microwaves. So in a previous video we already discussed the different things which are related to the communication media, and in this communication media we discuss guided or unguided media. So under the unguided media we discuss the radio waves, microwaves and infrared. So in today's lecture we discuss the terrestrial microwaves. So first of all we know that what is the terrestrial microwaves. So here the terrestrial means on or relating to the earth. So as we discussed in a previous lecture, in that we discussed that what is the unguided media, that are the wireless transmission, and in this wireless transmission we use the medium is the air. So here the terrestrial microwaves that are also use the air for propagating or for transferring signal from one place to the another place, and here the meaning of terrestrial is related to the earth, means in the microwaves it is propagated through the particular surface of the earth. Transmission system consists of at least two radio transmitter or receiver, that is the transceiver, connected to gain antenna, directional antenna which concentrate electromagnetic or radio waves energy in narrow beams focused in pair on the other. So in this transmission system we have the two radio signals, receiver and the transmitters, that is known as the transceiver, that are the connecting at the high gain antennas, the antennas which are used for the terrestrial microwaves, that are the high gain antenna, and the directional antennas which are concentrated that the electromagnetic or radio wave energy which is in the form of the narrow beams and which is focused on the pair of each other, means there is one is the transmitter, another one is the receiver. So they are the both are the communicating with each other by sending and receiving the signals. So जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि इन द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स ये रिलेटेड होता है अर्थ से, एंड अर्थ सरफेस के ऊपर में ये काम करता है, एंड इन दिस द ट्रांसमिशन सिस्टम जो होता है वो ट्रांसमिशन सिस्टम आपका सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना के बेस पे काम करता है, और ये जो भी आपके सिग्नल्स होते हैं, ये जो सिग्नल्स होते हैं ये हाई गेन एंटीनास के थ्रू ये सेंड और रिसीव्ड होते हैं, और इसमें जो ये सिग्नल्स यूज होते हैं वो सिग्नल्स कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो वेव्स होते हैं जो नैरो बीम के थ्रू पास होते हैं, जो भी इसमें एंटीनास यूज होते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग के लिए. The operation is point-to-point communication are established between two and only two antennas with line of sight visibility. So as we know that the operation in this, that is the point-to-point communication, and they are established between the two antennas, which is one is the sending antenna, means the transmitter, and another one is the receiver, and it is the line of sight, means it propagate in a straight line. So इसमें जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ये जो ऑपरेशन होता है पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशन कम्युनिकेशन, इसमें जो दो एंटीनाज होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में कम्युनिकेट करते हैं, दो एंटीना फोकस एक दूसरे को स्ट्रेट लाइन में करते हैं और उसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है. दिस कैन बी constructed to point to multi-point system like broadcast radio or television. So it is also used for the point to multi-point system, and which is known as the broadcast system, and it is used for the radios and televisions.
सो जैसे कि हम लोगों ने इस पॉइंट में देखा कि यहाँ पे जो भी टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स होते हैं वो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं, और वो जो पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ऑपरेशन होता है इसे हम लोग ब्रॉडकास्ट कहते हैं, और जिसमें ये रेडियोज और टेलीविजन्स के सिग्नल को प्रोपोगेट करते हैं या उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं। In this system, the signal are extremely concentrated and the physical router must be line of sight. So, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये जो सिस्टम यूज होता है, जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स होते हैं, ये इसके जो सिग्नल्स होते हैं वो एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और ये फिजिकल राउट परफॉर्म करते हैं, और उस राउट में एक सिंगल डायरेक्शन दैट स्ट्रेट लाइन के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। The signals in this system are extended with the help of relay towers. So as you know that whenever the terrestrial microwaves are communicating, if the signal has transmitted from one place to another place and carries some distance, after that the another antenna carry the signal to the next antenna. So in this way this signal is extended with the help of relay tower. There is some towers is available and that tower is the relay tower. So ये जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स होते हैं ये कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वन ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू टू दी अनदर रिसीविंग एंटीना। एक ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है, दूसरा रिसीविंग एंटीना होता है, और उसके बाद अगर इसको और आगे सिग्नल्स को प्रोपोगेट करना है तो दूसरे एंटीना के थ्रू ये वो सिग्नल को और आगे प्रोपोगेट करता है, और इसी को हम लोग रिले टावर कहते हैं, जो एक सिग्नल्स को एक टावर से दूसरे टावर और दूसरे से तीसरे टावर्स तक पहुंचाता है। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सिस्टम नीड डायरेक्शनल पैराबोलिक एंटीना टू ब्रॉडकास्ट एंड रिसीव सिग्नल in the tower gigahertz range. So as you know that in a terrestrial microwave system we need the antenna, and that antenna is the directional parabolic antenna. So that is the one type of antenna which is used in the terrestrial microwaves, and that antenna is broadcast and receive the signal to a lower gigahertz range. So as you know, in that we are using the lower gigahertz range to communicate from one tower to the another tower, and that in that tower we use the one type of the antenna, and that antenna is the parabolic antenna. Now how data transfer and received in terrestrial microwaves. So we discuss in terrestrial microwave communication employs earth-based transmitter and receiver to transfer and receive data. So as you know that the terrestrial microwaves is the earth-based transmitter and receiver. Earth-based means it is situated on the earth, and through that we are using the air is the media which is transmit and receive the signal. The frequencies used are in a low gigahertz range which limits all communication to line of sights. So this terrestrial microwaves is used some frequencies, and that frequency is the low gigahertz range, and that is situated the two antennas in a straight lines for the limits of the communication. Example of terrestrial microwaves equipment, that is telephone relay towers, which are placed every few miles to relay telephone signals cross country. So the equipment which are used for the terrestrial microwaves are the telephone relay towers, which are placed in a few miles of the relay telephone signal across the country. So in this we are using the relay tower, which is the middle
in nature, and through this tower the signal is propagating from one place to the another place, and this relay tower plays the middle role in the communication channel. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स में कई सारे जो रिले टावर्स होते हैं वो मेन रोल प्ले करते हैं, और जो ये टावर्स होते हैं ये अर्थ बेस्ड होते हैं, अर्थ के पास में होते हैं, और जिसके थ्रू जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। माइक्रोवेव्स जो सिग्नल्स होते हैं वो एयर के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, और अक्रॉस द कंट्री अगर हमें ये सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना है तो मिडल में बीच बीच में ये रिले टावर्स होते हैं जो सिग्नल्स को एक जगह से लेके दूसरे जगह पे प्रोपोगेट करते हैं। Approximately 20 to 30 miles between towers. So the distance of the relay towers is the 20 to 30 miles maximum. So यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है हमें कि 20 to 30 miles का डिस्टेंस होता है दो रिले टावर्स के बीच में। ट्रांसमिट डेटा एट hundreds of millions of beats per seconds. सो ये जो माइक्रोवेव्स होता है इसमें जो स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जिसके थ्रू ये जो ट्रांसमिट करता है डेटा को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ द बीट्स पर सेकेंड वो डेटा के हिसाब से वो ट्रांसमिट करता है। नाउ वी डिस्कस द एंटीना यूजेस इन टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स। सो विच टाइप ऑफ एंटीना वी आर यूजिंग इन द टेरेस्ट्रियल microwaves. So microwaves transmission typically use a parabolic antenna that produce a narrow highly directional signals. So कि ये जो हमारे माइक्रोवेव्स जो ट्रांसमिशन होता है, जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स ट्रांसमिशन होता है, इसमें जो हम लोग एंटीना यूज करते हैं दैट एंटीना इज द पैराबोलिक एंटीना, and that antenna produce the highly directional signal. So एक डायरेक्शन में वो सिग्नल प्रोपोगेट होते हैं, और जो दूसरा एंटीना होता है उसे रिसीव करके वो सिग्नल को आगे प्रोपोगेट करता है। A similar antenna at the receiving side is sensitive to signal only within a narrow focus. So सेम टाइप का एंटीना रिसीविंग साइड में भी होता है जो रिसीव्ड करता है सिग्नल को, और वो जो सिग्नल्स होते हैं उसको फोकस्ड करता है नैरो बीम के थ्रू, उसमें जो सिग्नल्स आते हैं उसे रिसीव करके आगे प्रोपोगेट करता है। बिकॉज द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर हाईली फोकस्ड दे मस्ट बी एडजस्टेड केयरफुली सो दैट द ट्रांसमिटेड सिग्नल इज अलाइंड विथ द रिसीवर। So as you know that in a terrestrial microwaves the face of the antenna is in the face to face direction, and in that the transmitter is transmit the signal and receiver is received signal in a straight line. और जैसे कि यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो ट्रांसमीटर एंटीना और जो रिसीवर एंटीना होते हैं ये स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और वो इस तरीके से एडजस्ट किए जाते हैं ताकि जो सेंडिंग एंटीना है जो सिग्नल सेंड कर रहा है वो सेम स्ट्रेट लाइन में जो रिसीवर एंटीना लगेगा वो सिग्नल को रिसीव कर सके। इस टाइप से इसकी एडजस्टमेंट होती है। फॉर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस सेव्ड बाय टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स रिपीटर्स कैन बी इंस्टॉल्ड विथ ईच एंटीनास। सो एज यू नो दैट whenever you are increasing the distance of the terrestrial microwaves, so some repeater is installed in the antennas of the transmitter and receiver. The signal received by an antenna can be converted into the transmittable form and relay to next antenna as shown in बिलो फिगर। सो जो भी सिग्नल्स को रिसीव करता है एंटीना उसे कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसमिटेबल फॉर्मेट पे, और उससे रिले किया जाता है नेक्स्ट एंटीना पे। सो इस तरीके से जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स है वो प्रोपोगेट होते हैं वो वन एंटीना टू दी अनदर एंटीना।
It is an example of टेलीफोन सिस्टम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो जैसे कि हम लोग अगर टेलीफोन सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं तो वो भी इस टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स के थ्रू ही परफॉर्म करते हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द terrestrial microwave signals which is propagated to one antenna to the another antenna, and the distance of these antenna is about 20 to 30 mils of the each other. So जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज द एंटीनाज है, ये एंटीना सिग्नल ये एक फेस टू फेस स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और जो भी सिग्नल है वो ट्रांसमीटर एंटीना से रिसीवर एंटीना पे प्रोपोगेट होता है, और वहां से जब आगे प्रोपोगेट करना होता है तो दूसरा एंटीना के थ्रू वो प्रोपोगेट होते हैं, और इस तरीका थ्रू आउट दी कंट्री ये एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक रिले टावर लगाया जाता है, एंड इन दैट रिले टावर वी हैव दी both type of the antennas, that is the transmitter antenna and the receiver antenna. So this is the diagram of the terrestrial microwave setup of transmitting antenna and receiving antenna and the relay towers. Now we discuss there are two types of antenna used for the terrestrial microwaves communication. So for the terrestrial microwaves communication we use the two types of antenna. The first one is the parabolic or dish antenna, another one is the horn antenna. So let's start one by one. So the first one is the parabolic dish antenna. In this, every line parallel to the line of symmetry reflects off the curve at angles in a way that they intersect at a common point called focus. So in this parabolic antennas, in the parabolic antenna, all the signal lines, the line is the parallel to the line of the symmetry and reflect that curve of angle in a way that they इंटरसेक्ट एट पर्टिकुलर फोकस। सो इसमें कि जैसे कि हमने देखा है कि पैराबोलिक जो डिश होता है इसमें जो भी लाइंस होती है वो पैरेलल होती है द लाइन ऑफ सिमेट्री के, और वो रिफ्लेक्ट करती है एक पर्टिकुलर कर्व के एंगल से, और उसको एक कॉमन पॉइंट के थ्रू वो पर्टिकुलर जो सिग्नल्स होते हैं वो फोकस्ड होते हैं स्ट्रेट लाइन में। This antenna is based on the geometric of parabola. So parabola के geometric पे ये based होता है, जिसके थ्रू जो भी signals होते हैं वो particular एक point के थ्रू focused होते हैं and propagate होते हैं through air में to the receiver antenna तक। Focused narrow beams to achieve line of sight transmission to the receiving antenna. So as you know that the both antennas are face to face and the signal is propagating in a straight line. So जो भी हमारे sending antenna है और जो receiving antenna है, उन दोनों के जो भी सेटअप होता है, जो एडजस्टमेंट होता है वो फेस टू फेस होता है, और एक सिंगल लाइन के थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू उसके एडजस्टमेंट होते हैं दो एंटीनास के। So this is the diagram of the parabolic dish antenna. So this is the antenna which is in the curved face, and it has the point of reflection through a particular beam. In this, every line parallel to the line of symmetry. So every line is the parallel to the line of symmetry, and with the help of one common point it focused all the signals through the another receiving antenna. So जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो डायग्राम है ये पैराबोलिक डिश एंटीना का है, ये कर्व शेप में होता है, और जो भी आपके जो इसके सिग्नल्स होते हैं वो पैरेलल लाइन के थ्रू होते हैं और सिमेट्रिक के पैरेलल में होते हैं, और एक पॉइंट से ये
पूरा का पूरा सिग्नल को एक स्ट्रेट लाइन में फोकस्ड करता है और वहां से प्रोपोगेट कराता है रिसीविंग एंटीना के थ्रू. So the next one is the horn antenna. So it is a like gigantic scoop. The outgoing transmission are broadcast up to stream and deflected outwards in a series of narrow parallel beam by curve head. So in this is the another type of the antenna which is known as the horn antenna, and this is the antenna which is the outgoing transmission are broadcasted at the stream of the deflected series of narrow parallel beam and curve head. So जैसे कि ये जो सेकंड टाइप का एक एंटीना है हमारा, इस एंटीना को हम लोग हॉर्न एंटीना कहते हैं. एंड इस एंटीना के थ्रू जो भी ट्रांसमिशन होता है वो एक सीरीज ऑफ नैरो पैरेलल बीम के थ्रू होता है, जिसके थ्रू जो कर्व हेड होता है वहां से वो प्रोपोगेट होता है और इसके जो सिग्नल्स है उसको ब्रॉडकास्ट करता है अनदर एंटीना तक. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द हॉर्न एंटीना. सो ये हॉर्न एंटीना होता है, इसके जो भी सिग्नल्स होते हैं ये इस तरीके से यहाँ से प्रोपोगेट होते हैं और जो भी नैरो आपकी जो पैरेलल बीम्स होते हैं वो कर्व हेड से आगे प्रोपोगेट किए जाते हैं. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ हॉर्न एंटीना. नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस इज द टावर, relay tower. In this tower we have the transmitter antenna, and here in the building there is one antenna. So a microwave antenna on top of a free standing tower transmitting to another antenna on the top of the building. So जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग पे एक हमारा एंटीना लगा हुआ है और उसी के लेंथ में हमारे पास में एक टावर है जिस टावर पे हमारे एंटीनाज लगे हुए हैं. सो ये एंटीना आपका ट्रांसमीटर एंटीना है और दूसरा एंटीना इसका रिसीवर एंटीना है जो सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं. और ये जो भी इनका ट्रांसमिशन होता है ये स्ट्रेट लाइन में होता है. सो ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि जो भी ट्रांसमिशन है ये स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिशन है और इनके बीच में कोई ऑब्स्ट्रैकल नहीं आता है, तब ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है. नाउ point to point communication in terrestrial microwaves. So we discuss here the point to point communication. The terrestrial microwaves antenna generate a beam of radio frequency signal to communicate between two locations. So जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंटीनाज होते हैं ये जनरेट करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स और वो कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन दी टू लोकेशन. एक आपका ट्रांसमीटर का लोकेशन होता है, दूसरा रिसीवर का लोकेशन होता है. पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन अ क्लियर लाइन ऑफ साइट बिटवीन दी टू माइक्रोवेव एंटीनाज. सो व्हेनेवर वी आर कंसिडर एज द पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, सो जो भी हमारा पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है ये टोटली डिपेंड होता है आपके लाइन ऑफ साइट मीन्स स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में ये कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है बिटवीन दी टू एंटीनास से. ऑब्स्ट्रैकल सच एज बिल्डिंग, ट्रीज और ट्रेन इंटरफेयर विथ द सिग्नल्स. So as you know that whenever we are consider the point to point communication or we are use the terrestrial microwaves, so this is the straight line communication, this perform the straight line communication, and if there is a obstacle so it cannot be communicated. So that's why we are using this on the top of the building or the higher हाइट ऑफ द टावर. सो ऑब्स्टैकल जब भी क्रिएट होते हैं तो ऑब्स्टैकल के कारण जो भी कम्युनिकेशन होता है ये इफेक्ट होता है. सो इसलिए जब भी ऐसे सेटअप लगाए जाते हैं तो ये बिल्डिंग के ऊपर या हाइट ऑफ द टावर, जो भी टावर का काफ़ी हाइटेड टावर है उसके ऊपर ये एंटीनास को फिट किए जाते हैं ताकि ये जो भी ऑब्स्टैकल्स है ये बीच में इंटरफेयर ना कर सके
और जो भी इनका जो कम्युनिकेशन हो वो स्ट्रेट लाइन में हो और उनके बीच में कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो सके। डिपेंड ऑन द लोकेशन, यूजेस एंड फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट टाइप्स कैन बी यूटिलाइज। सो डिपेंड करता है कि इनकी जो लोकेशन क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसीज क्या है, उसके यूजेस क्या है, उसके हिसाब से इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है जो भी हमारे टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स होते हैं। वी विल एड्रेस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज वेरियस टाइप्स। सो यहाँ पे बहुत सारे जो टाइप्स होते हैं डिपेंड करता है इसके यूजेस पे, उसके फ्रीक्वेंसी पे, उसके लोकेशन पे। सो कई टाइप्स के जो एड्रेसेस होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम इसे यूज करते हैं। Now we discuss the use of microwaves links. A microwave link frequently is used to transmit signal in instances in which it would be impractical to run cables. So ये जो माइक्रोवेव्स की जो लिंक्स होती है ये वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पे हमारे केबल्स जो प्रैक्टिकली लगाना पॉसिबल नहीं होता है, वहाँ हम लोग माइक्रोवेव लिंक का यूज़ करते हैं। इफ़ यू नीड टू कनेक्ट टू नेटवर्क सेपरेटेड बाय अ पब्लिक रोड, so as you know that whenever you connect the two network and if there is any road, so it is not possible that we are connect these two link with the help of the cable. For example, you might find that regulation restrict you from running cable above or below the road. In such a case, a microwave links is an ideal solution. So as you know that whenever there is the road and if you want to connect the two segment of the network, so ऐसे कंडीशन में हम केबल का यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि या तो केबल हमें रोड के ऊपर से लेके जाना होगा या तो रोड के नीचे से लेके जाना होगा। सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग माइक्रोवेव लिंक का यूज करते हैं। अदर डिवाइसेस एबिलिटी टू कनेक्ट, सम लैंड्स ऑपरेट एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी एट लो पावर एंड यूज यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमीटर्स एंड रिसीवर्स। सो इन सम लैंड्स which is operate also the microwave frequencies, जिसमें कि जो लो पावर और यूनिडायरेक्शनल ट्रांसमीटर एंड रिसीवर का यूज किया जाता है। नेटवर्क हब्स कैन बी प्लेस्ड स्ट्रेटेजिकली थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क स्टेशन कैन बी मोबाइल और फिक्स। सो इस प्रकार के कुछ हब्स होते हैं, नेटवर्क हब्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन और वर्क स्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि वर्क स्टेशन ये मोबाइल और फिक्स पोजीशन में होते हैं। दिस अप्रोच इज वन वे टू इनेबल मोबाइल वर्क स्टेशन इन एन ऑफिस सेटिंग। सो व्हेनेवर देयर इज ए ऑर्गेनाइजेशन और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क स्टेशन है उसे जब मोबाइल रखना है तो ऐसे टाइम पे हम लोग टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव यूज फ्रीक्वेंसीज, इन मेनी केसेस टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स यूज लैसेंस फ्रीक्वेंसीज। सो कई सारे जो केसेस होते हैं जिसमें कि ये जो माइक्रोवेव्स होते हैं, जो हमारे टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स होते हैं, ये यूज करते हैं लैसेंस फ्रीक्वेंसीज को। सो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उस लैसेंस प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद उसे यूज किया जाता है। अ लाइसेंस मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, दैट इज FCC, एंड इक्विपमेंट मस्ट बी इंस्टॉल्ड एंड मेंटेन्ड बाय लाइसेंस टेक्नीशियंस। सो ये जो भी लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स के लिए, ये जो प्रोवाइड करते हैं ये करते हैं फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, जिसे हम लोग FCC भी कहते हैं। और उनके जो इक्विपमेंट और जो मेंटेनेंस किए जाते हैं जो उनके इक्विपमेंट को और जो उनको इंस्टॉल किया जाता है वो लाइसेंस टेक्नीशियन होते हैं, वही उसे इंस्टॉल और
मेंटेन करते हैं। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सिस्टम ऑपरेट इन अ लो gigahertz range, typically at 4 to 6 gigahertz and 21 to 23 gigahertz, and costs are highly variable depend on the requirement. So this terrestrial microwave system that is operate on the low gigahertz range, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि ये जो टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव सिस्टम होते हैं, ये जो ऑपरेट करते हैं, ये इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है लो गीगाहर्ट्ज होती है, जिसमें कि दैट इज 4 to 6 गीगाहर्ट्ज एंड 21 to 23 गीगाहर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो यूज करते हैं। और जो कॉस्ट होती है ये वेरिएबल होती है, डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके बेस पे इसकी कॉस्ट डिसाइड की जाती है। लॉन्ग डिस्टेंस माइक्रोवेव सिस्टम कैन बी quite expensive but be less costly than alternatives. A leased telephone circuit, for example, represent a costly monthly expenses. So जैसे कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस माइक्रोवेव सिस्टम होता है तो वो कुछ एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये जो एक्सपेंसेस होता है ये इसके जो अल्टरनेट है उससे कम होता है। जनरली जो भी हम इसके अल्टरनेट्स यूज करेंगे फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस माइक्रोवेव सिस्टम, उसके जो अल्टरनेट हम यूज करते हैं इससे सस्ता होता है, क्योंकि ये जो इसके जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं अल्टरनेटिव्स के एज कंपेयर टू द माइक्रोवेव सिस्टम्स। व्हेन लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन इज पॉसिबल, a microwave link is a one-time expenses that can offer greater bandwidth than a leased circuit. So जैसे कि हमें पता है कि अगर आप माइक्रोवेव लिंक्स प्रोवाइड करते हो या माइक्रोवेव लिंक्स आप यूज़ करते हो, सो दिस इज़ दी वन टाइम एक्सपेंसेस है, और ये हमें प्रोवाइड करता है ग्रेटर बैंडविड्थ और हाई स्पीड, जिसके थ्रू हम लोग कम सर्किटरी में इसे यूज कर सकते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन ट्रांसमिशन के बराबर होता है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन। टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स एडवांटेजेस। सो सम एडवांटेजेस इज आल्सो इन अ टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स। द फर्स्ट एडवांटेजेस इज इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। Terrestrial microwave is more flexible than the satellites. So whatever the links we are use in the terrestrial microwaves, so ये flexible है, more flexible है than the satellite. Satellite से ये ज़्यादा flexible है, जिसके थ्रू हम लोग ये microwaves को use करते हैं। Reduce size and weight. The RF link operate over a shorter distance and require less power than a satellite equivalent. Lower power means less weight, smaller size and reduced power consumption. So ये जैसे कि इसका टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स का एक एडवांटेज है कि ये रिड्यूस साइज एंड वेट में रिड्यूस रहता है। सो जो भी इसमें हम लोग आरएफ लिंक यूज करते हैं वो ऑपरेट करता है शॉर्ट डिस्टेंस के रिक्वायरमेंट पे, और जब ये शॉर्ट डिस्टेंस के बेस पे ये ऑपरेट करता है तो इसमें लेस पावर कंजम्पशन होता है, पावर लेस होता है, प्लस इसका जो वेट और जो साइज होता है ये स्मॉलर होता है, जिसके कारण जो पावर कंजम्पशन होता है वो कम होता है। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस लेटेंसी। सो लेटेंसी इसमें जो क्रिएट होती है वो काफ़ी कम होती है। वीडियो इज डिलीवर विथ मिनिमल डिले। सो वॉट एवर द वीडियोज यू आर वॉचिंग, सो व्हेन यू आर यूजिंग द टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव्स, तो उसमें जो लेटेंसी है वो काफ़ी कम होती है। लोअर कॉस्ट, अवॉइड exorbitary cost of licensing satellite. So it is the low cost because it avoid the exorbitant cost that of the licensing satellites. So these are the advantages of terrestrial microwaves. So first was is increase flexibility, reduce size and weight, reduce latency and lower cost.
So this is all about the terrestrial microwaves. I hope so you all are understand. If you have any doubt, then you will write on the comment. I will definitely reply you. Okay, bye bye.